Hello students, today we are going to start chapter polynomial, that is lesson number 2 of 9th standard. Okay, so before starting the lesson we must know what is this polynomial means. Polynomial means expression containing more than two terms. That is a simple definition in terms of what is polynomial. Now what is term, what is power, degree, that we are going to see in this video, and then we'll proceed with the exercises. But first, this will be the introduction of polynomial, in which, as we have seen in the linear equation, what is linear, quadratic, cubic, that we are going to see here. So let us take a standard form of linear quadratic. We will take all the three. So let us take ax plus b is equals to 0, ax square plus bx plus c is equals to 0, ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0, and also ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equals to 0. So in this way we can write the standard form of polynomial. Here we are only using the only one variable x, everywhere it is x, so it will be called as one variable. Okay, so if it is one variable, now what are these terms? अब ऐसी वैल्यूज जिसको x लगा हुआ है अल्फाबेटिकली, वेरिएबल्स मतलब जो ये x, y, z इन टर्म्स में हम लोग लिखते हैं, और ये जो है इसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x. ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x, जो x का दोस्त है, मतलब x के साथ लगा हुआ है, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x. तो ये हो गया आपका, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. नाउ वी कैन, अब मैंने यहाँ पे बोला टर्म बोल दिया, सो नाउ सी दिस इज वन टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज वन टर्म एंड द सेकेंड टर्म, करेक्ट. सो दिस एक्सप्रेशन इज हैविंग टू टर्म्स. ओके, नाउ similarly we can see this second expression in which there are 1, 2 and this 3. There are 3 terms. Now in these 3 terms we are dealing with quadratic equation, because here 2 is a power, so therefore it will be called as quadratic equation. So again this will be coefficient. अब ये दोस्त है, किसका दोस्त है? कोएफिशिएंट. यहाँ पे ये x का दोस्त था, यहाँ पे ये x स्क्वायर का दोस्त है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. द कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी b. ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x. दिस विल बी अगेन कांस्टेंट टर्म. So see, in the first equation it was linear equation in one variable. Here it become quadratic equation. This will become cubic equation, and this will become again having power 4 equation. Now see, why we are calling quadratic, cubic, biquadratic or linear equation depends on the highest power. यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कौन सा है? अब पावर किसको बोलते हैं? पावर मतलब यहाँ पे जो वैल्यू लगी हुई होती है वेरिएबल ऑफ x के साथ, x का जो पावर होता है that is called as power. Okay, so this will be a power. Here this is a power, here this is a power, here this is a power. See, now here 2, here x power is 1, here 3, 2, 1, like that. These are called as power. Out of this the highest power will be called as degree. अब यहाँ पे सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर कौन सा है? डिग्री. तो इसके नाम से उस एक्सप्रेशन को बुलाया जाता है. यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री. दैट बिकम्स 2. तो हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री होता है. अब यहाँ पे डिग्री 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है. यहाँ पे डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए इसको बोला गया है लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे 3 पावर है इसलिए क्यूबिक, और यहाँ पे 4 पावर है इसलिए इसको बाइक्वाड्रेटिक. अब पॉलिनोमियल हैविंग मोर देन 2 टर्म्स, ये हो गई 1 टर्म, ये हो गई 2 टर्म, ये हो गई 3, ये 4, यहाँ पे 4 टर्म है.
यहाँ पे 5 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो हैविंग मोर देन 2 टर्म्स कैन बी टेकन एज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डील विद दिस थिंग्स इन द पर्टिकुलर चैप्टर. अब मैं थोड़ा सा और इसको इजी वे में बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ और इजी वे में बता देता हूँ, ताकि आपको सब it must be very clear to you that what is what. Okay, so let us take one quadratic equation, or as an example 2x square plus 3x plus 4 is equals to 0. Let us say this is an expression in which now what is the power. यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1. इसका पावर देखेंगे हम नहीं, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे. वी विल सी द पावर ऑफ वेरिएबल. ये वेरिएबल है, हम इसका पावर देखेंगे. ये वेरिएबल है, हम इसका पावर देखेंगे. ठीक है, और वेरिएबल के साथ जो होता है हमेशा उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. उस वेरिएबल का मानो एक्स स्क्वायर का, दिस एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट कौन है, इसका दोस्त कौन है 2. एक्स टू द पावर 1, इसका कोएफिशिएंट कौन है 3. ये कांस्टेंट टर्म, इस तरीके से इसको बोला जाता है. सो दिस विल बी कोएफिशिएंट. अब जिसका भी कोएफिशिएंट हो वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, इसको बोलेंगे वेरिएबल. जनरली वेरिएबल हम लोग लिखते हैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में या एबीसी के फॉर्म में, ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सके इजीली. नाउ दीज आर वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब बचा डिग्री. व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर. तो यहाँ पे डिग्री हम 2 बोलेंगे. क्यों? बिकॉज द हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर कौन से 2 and 1. सो अमंग दिस विच इज द हाईएस्ट, दिस इज 2 is the highest, so this will be called as power. So in this way, these are the basic concepts of polynomial, though these are in linear equation also, but these are very much important for this lesson.